Now this is redox reaction. Question number 8.20. Write 4 information. है ना? You have to write down 4 information about the reaction. CN2 है, 2OH माइनस है, CN माइनस है, CNO माइनस है, H2O. तो पहला किसमें बोला this is disproportionation reaction. So how we can say that it is disproportionation reaction? Here oxidation number of any one atom is, again we can say that more than 2 different type of oxidation number will come here. More than 2 different type of oxidation number will come here. Otherwise this is cyanogen gets simultaneously reduced to cyanide ion as well as oxidized to cyanate ion. Cyanate मतलब क्या सा होता है? CNO-1 एंड साइनाइड का मतलब तो आपको पता ही है. क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन CN2 इज -3. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन CN2 इज -3. आपको रूल बताया हुआ है. व्हाइल दैट इन साइनाइड माइनस इट इज अगेन -2 एंड CNO माइनस, तो दिस विल बी -5. मतलब दिस स्टेप इज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर? Now reaction occurring basic medium. So how you can say that it is basic medium? So due to presence of OH minus. देखो कैलकुलेशन आपको आता होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, इसलिए मैंने नहीं बताया. क्लियर? नहीं आए वो भी पूछ लो. चलो नेक्स्ट वन. अब आता है 8.21. यहाँ पे Mn+2 ion is unstable in solution and undergoes disproportionation to give, है ना, Mn+2 ion, MnO2 and H+ ion. तो write a balanced ionic equation for this one. तो आपको क्या करना है? First of all complete information is written in skeletal form. तो skeletal form में क्या देखो, Mn+3, Mn+2, MnO2 and H+, यहाँ पे दिया हुआ है. क्लियर? तो now oxidation half reaction. तो कैलकुलेट किया ऑक्सीडेशन नंबर. तो देखो ये 3 है और यहाँ पे आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा? इन MnO2 तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी अगेन वी कैन से 4. नाउ ये ऑक्सीडेशन हाफ है, तो दिस इज वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन हाफ. बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. क्या करने का? इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. यहाँ पे देखो +3 है, ये +4, एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Here 3 and 3 both side will be there. Now balance charge by adding H+ ion. Balance charge by adding H+ ion. ये +3 है, क्लियर हुआ? ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर पे क्या था? Here means 4, क्लियर हुआ कि नहीं? तो here 4 balancing charge. तो we are adding here, we can say that 4H+ ion. Now balance oxygen atom. तो balance oxygen atom. Now what we are doing? तो we are taking here this water molecule. यहाँ पे 4H+ है, तो आपको क्या करने का? वाटर ले लेने का. क्लियर? तब देखो हियर ऑक्सीडेशन इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल डिस्कस हियर रिडक्शन हाफ. तो रिडक्शन हाफ में क्या आएगा? Mn+3 से Mn+2 विल बी देयर. क्लियर? नाउ बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. तो क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना? अब चलो, अब नाउ टू कैंसल आउट हियर इलेक्ट्रॉन, तो वी आर adding equation 1 and 3 and balance equation for disproportionation reaction. तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा? 2Mn+3, 2H2O, MnO2 and then after Mn+2 and 4H+ will be there. मतलब जो भी आपका वर्ड प्रॉब्लम था ना, वर्ड प्रॉब्लम, it is converted into first of all symbolic form, then after calculation of oxidation number, and with the help of oxidation number we can find out which one is again is oxidation half and which one is again we can say reduction half here. क्लियर हुआ? फिर आपको क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना है, एटम बैलेंस करना है बाय अप्लाइंग दैट टाइप ऑफ थियरी. क्लियर? थियरिटिकल स्टेप्स आपको पता है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8.22. इसमें क्या करना है? कंसीडर द एलिमेंट. देखो अभी तो ये 4 ही एलिमेंट दिया है, cesium, neon, iodine and fluorine, and identify the element that exhibit negative oxidation state. आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. तो कौन आएगा? फ्लोरीन. Why fluorine will come?
because this is highly electronegative element in complete periodic table. This is highly electronegative element in complete periodic table. Clear? Again I am repeating. Why fluorine? Because it is highly electronegative element in case of periodic table. Clear? चलो second question. Identify the element that exhibit positive oxidation state. तो cesium आएगा, है ना? cesium तो किधर का? group 1. The electropositive character of group 1 will be again we can say that maximum. फिर आता है identify element that exhibit positive and negative oxidation state both. तो उसमें क्या आता है? iodide आता है. तो because of presence of 7 electron in the valence shell shows an oxidation number -1, and because of the presence of d orbital it also exhibit oxidation state +1, 3, 5 and 7. Clear? In case of iodine, if we are writing electronic configuration, तो कैसा आ जाएगा? Here the 7 electrons are present in valence shell, shows an oxidation state of -1, but due to presence of d orbital, here again 1, 3, 5, 7 will come. 12th में जाओगे ना, p ब्लॉक जब आप रीड करोगे तो उसमें आता है इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो वहां पे आपका ये आएगा IF7 बनेगा. क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच नाइदर एग्जिबिट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो नियोन आएगा, बिकॉज नियोन इज मेंबर ऑफ ग्रुप 18. नियोन इज अगेन वी कैन से दैट मेंबर ऑफ ग्रुप 18. क्लियर? तो देखो ऐसे अभी मैंने सीजियम, नियोन, आयोडीन, फ्लोरीन बोला है, ऐसे कुछ और भी आ सकते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. Chlorine is used to purify drinking water. Clear? Chlorine is used to purify drinking water. Excess of chlorine is harmful. Excess of chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. मतलब SO2. तो present a balanced equation for the reaction, and for this redox change taking place in water. तो आपको बैलेंस करना है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ना सबसे पहले नहीं आपका बैलेंसिंग है, वी कैन यूटिलाइज आइदर हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो हम लोग क्या करेंगे? हियर वी आर यूटिलाइजिंग, हियर सी ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब हाफ रिएक्शन मेथड. तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से स्केलेटल इक्वेशन रखना है. स्केलेटल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस तो क्या आएगा? क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर है, 2Cl- and SO4 - 2 will be there. Clear? अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, क्लोरीन का क्या आता है? 0 आता है. इधर क्या आता है? -1. तो 0 से -1 मतलब 1 डिक्रीज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ. क्लियर? क्लोरीन का 0 है, Cl का -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजेस, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ. क्लियर? अब यदि मैं SO2 की बात करूं, SO2, तो SO2 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? हियर वी कैन से दैट 4 है, और SO4 में कितना आ जाता है? 6 से. तो 4 से 6 है ना, 4 से आपका 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ. मतलब क्लोरीन का रिडक्शन एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन. तो चलो यहाँ पे मैंने लिया Cl2 give us Cl-. now balance Cl atom, here we can say that balance Cl atom, so therefore we are multiplying with 2, therefore we are multiplying with 2 here. now balance oxidation number by adding electron. अगर right hand side का -2 है, इधर पे 0 है, that's why we are adding here means 2 electron. in this way in reduction half, here we can say that reaction is balanced with respect to electron. Clear? So 50% steps is completed. Now we are discussing this oxidation half. So SO2 से SO4 - 2 हुआ, तो balance oxidation number by adding we can say that electron. ये क्या आ जाएगा? adding electron. तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है ना? उसके बाद बैलेंस चार्ज, फॉर बैलेंसिंग चार्ज वी आर एडिंग H+ आयन. तो मैंने क्या किया? सी यहाँ पे आपका 4H+ आयन विल बी देयर. क्लियर? नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस हियर वी कैन से दैट ऑक्सीजन by adding we can say that water molecule.
तो यहाँ पे देखो 4 है, इधर को मुझे क्या करना पड़ेगा 2 moles ऑफ वाटर। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन हाफ फॉर अबव रिएक्शन। अब आपको पता है कि टू कैंसल आउट हियर इलेक्ट्रॉन, नाउ वी आर एडिंग इक्वेशन 2, दिस इज 2 एंड देन आफ्टर 1, तो फाइनल रिएक्शन विल बी Cl2 SO2 2H2O 2Cl minus SO4 minus 2 and then after 4H plus will be there। यदि आपको चार्ज बैलेंस करना है तो देखो यहाँ तो सबका 0 0 0, इधर -2 plus 4, here all 0 will be there। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब ये वाला रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एटम एंड विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज दोनों आपका बैलेंस हो गया। ठीक है? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8.24। हियर क्वेश्चन नंबर 8.24, इसमें क्या करना है, रिफर टू द पीरियोडिक टेबल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, है ना, एनसीईआरटी बुक, एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल दैट कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, इफ यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, if we are going left to right, so here we can say that oxidation number will changes। if we are going left to right, then more than 2 different type of oxidation state will come, जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। तो उसमें कौन कौन सा नॉन मेटल है, देखो फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है। चलो फॉस्फोरस का रिएक्शन, तो P4 plus 3OH minus 3H2O PS3 and 3H2PO2 minus 1। रिएक्शन आपको याद रखना है, यहाँ पे फॉस्फोरस का नंबर 0 है ना, इधर पे क्या आ जाएगा, हियर वी कैन से दैट -3 विल कम। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, हियर सी इन केस ऑफ फॉस्फोरस तो 2HP2O -1 2P -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, उधर जाएगा है ना, -2 उधर गया तो +2 मतलब 1 हो जाएगा। तो हियर वी कैन 1 विल कम। इन दिस वे वी कैन से दैट फॉस्फोरस में देखो 0 -3 +1, तो हियर मींस ऑल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर 0, देयरफॉर इट इज नॉर्मली नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं? देयरफॉर दिस इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो क्लोरीन की बात करते हैं। ये बात देखो, क्लोरीन ये 0 है, ये -1 है, यहाँ पे देखो Cl प्लस, अब देखो Cl प्लस ऑक्सीजन -1 Cl -2, तो Cl इज इक्वल टू 1 विल कम। हियर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 0 -1 +1। क्लियर? अगेन फिर से हियर मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम, तो फिर से ये हो गया। फिर तीसरा आता है S8, तो चलो ये 0 है, यहाँ पे -2 एंड देन आफ्टर C H2O3, तो 2S3O -2 2S, यहाँ पे 2S4, S इज इक्वल टू 2 इज देयर, तो फिर से क्या आ गया 2। मतलब whenever we are going left to right, then here means 3 different type of oxidation state will come for same sulfur, 0 -2 +2, इसलिए इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब नॉन मेटल में कौन कौन है जो डिसप्रपोर्शनेशन देता है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है। सिमिलरली सिलेक्ट 3 मेटल दैट शोस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मेटल में कौन है, Cu+, गैलियम +1, इंडियम +1। तो चलो अब इसका रिएक्शन Cu+, तो देखो ये +1 है, +2 है, 0, अगेन 1 2 0, all 3 numbers are different, तो दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन। ऐसे गैलियम में देखो +1 +3 0, फिर से 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर से ये +1 +3 0, तो फिर से क्या होगा, तो देखो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है इन एनी केमिकल रिएक्शन, है ना, इन एनी केमिकल रिएक्शन इफ मोर देन 2 different type of oxidation number will come, more than 2 different type of oxidation number will come, so this is nothing but it is normally known as disproportionation reaction। तो नॉन मेटल में फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर आता है,
मेटल में आपका क्या आ जाएगा, कॉपर है, गैलियम है, इंडियम आ जाता है। क्लियर? ये ना इतने ही हैं जो क्या करेंगे फ्रॉम पीरियोडिक टेबल it will shows here we can say that disproportionation reaction। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी इन ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है? तो ऑसवाल्ड प्रोसेस इज एप्लीकेबल, ऑसवाल्ड प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर वी कैन से द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर? द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय ऑक्सीजन गैस टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एंड स्टीम। So what is maximum weight of nitric oxide that can be obtained starting only with 10 gram of ammonia and 20 gram of oxygen। तो देखो ये है ना मोल कंसेप्ट का है थोड़ा बहुत। क्लियर? तो चलो सबसे पहले रिएक्शन लिखने का, बैलेंस इक्वेशन ये आया। अब देखो तो अमोनिया का वेट कितना होता है 17, तो 4 into 17 34 ग्राम। ऑक्सीजन 32, तो 32 into 5 हियर 160 ग्राम। और ऐसे ये NO है तो नाइट्रोजन का आपका 14 plus 16 30, तो 120 ग्राम इज देयर। नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आफ्टर राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास on the basis of stoichiometric coefficient। Calculate molecular mass on the basis of stoichiometric coefficient। अब क्या करना, देखो this is limiting reagent। What is meaning of limiting reagent? In any chemical reaction, material which will consume maximum, in any chemical reaction, material which will consume maximum, it is nothing but it is normally known as limiting reagent। And what is excessive reagent? The excessive मतलब in any chemical reaction material है ना which will not consume maximum or after formation of product, if some amount of material will be remaining, so this one is nothing but it is normally known as excessive reagent। अरे जैसे यहाँ पे ऑसवाल्ड प्रोसेस बोला, ऐसे कुछ भी आ सकता है। हैबर प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर अमोनिया and contact process is applicable for we can say sulfuric acid। क्लियर? तो चलो हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। कैसे? देखो 160 ग्राम ऑफ O2 will react with, ये 160 ग्राम of O2 will react with 68 ग्राम of we can say that ammonia। 68 ग्राम of we can say that here is ammonia। क्लियर? तभी यहाँ पे कैसा आएगा, सी 168। क्लियर हुआ? अब देखो 160 ग्राम ऑफ O2 will react with ammonia, it will again produce here how much amount we can say that 68 ग्राम। तो 20 ग्राम of O2 के लिए here we can say that 20 ग्राम है ना। here what will happen, तो 20 ग्राम of O2 की यदि मैं बात करूं 20 ग्राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो 17 into 4, तो दिस इज 68। तो 160 ग्राम ऑफ O2 will react with ammonia and it will produce कितना 68 ग्राम। तो 20 ग्राम ऑफ O2 मतलब इसका वेट डिक्रीज हो रहा है। O2 will react with ammonia तो कितना आएगा, here we can say that see 20 ये ना आपका, तो here what will happen, 20 ग्राम is given। तो 20 ग्राम, तो यदि मैं यहाँ पे लिखने जाऊं तो here we can say that 20, तो 68 है, 68 है ना। तो देखो यहाँ पे कितना है दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 20 ग्राम ऑफ O2 will react with ammonia, तो 68 into 20 करो अपॉन में 160, तो 8.5 ग्राम will come। Here we can say that 8.5 gram will come। In this way we can say that O2 is limiting reagent। Accordingly, the amount of NO in the reaction would depend upon the amount of O2 taken and not on the amount of ammonia taken। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, देखो 20 ग्राम इज गिवन है ना, ये थोड़ा देखो 160 और ये आपका क्या हो जाएगा 68 ग्राम। अब आएगा कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ NO फॉर्म। तो देखो 160 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस 120 ग्राम ऑफ NO। ये रिएक्शन देखो 160 ग्राम ऑफ O2 will produce 120 ग्राम ऑफ NO।
तो therefore see, तो therefore here we can say that 20 मतलब 20 ग्राम ऑफ O2 के लिए कितना है ना, 20 ग्राम ऑफ, अगेन वी कैन से दैट O2 के लिए how much we can say that how much NO will produce, तो 20 into 120 upon 160, here 15 gram will come, here we can say that 15 gram will come. So this is complete information. क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस वन इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है.